all of you here, and very major thing that as an alumni, we are hosting you guys here, and on a very major topic, youth empowerment. So the very basic, that idea before having this panel talk on youth empowerment was because we had this time an Azadi Week under the theme Marka Haq. We had to celebrate different events under this theme, and what a better way we can have other than youth empowerment, because all we have sitting here is just youth, and these youth striving for their leadership skills, to have those qualities, to get, that, what we can say is like, to, have that success in their life, not just through their academics, but through their extracurriculars and everything. So that's why we have invited you guys, and I hope that through this panel discussion, the youth here, the students here, the council member present here will have a very good insight about what actual youth empowerment is, what actual youth leadership is. So to be very honest, I want to take this panel discussion very, casually, because we have the youth here, and youth का तो पता है वो जो है एक चीज़ को नहीं सुनते. They need to have, some fun. They need to have some real life stories. So I want के जो भी like we have the conversation, it should be very casual, and it should be youth centric, but it should have an insight of the future too, ताकि ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनको एक idea हो जाए that what we actually have to do in our future, and what you actually have gained from Zabis as students, and Mr. Sadullah as president of Zabis Student Council in 2014. Let's have a round of applause for them. All right. So, as we had the topic from interdependence to independence. So, my very first question would be, we often talk about youth collaboration, but what does actual true collaboration look like in practice? I'll firstly start from Ms. Zara. If you could introduce, and then, yeah, you can take it. अस्सलाम वालेकुम. आवाज़, हाँ. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम ज़ारा जाहिद है. ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं. थोड़ा मैं बता देती हूँ अपने बारे में. I am an officer of Pakistan Administrative Service. There is an exam called Civil Service, CSS exam, Civil Service का एग्ज़ाम होता है, वो दिया था मैंने और पास भी हो गया. तो जो है I ended up being in Pakistan Administrative Service. I did my undergrad from Zabis. I was a BBA student here back in 2009 to 2013. And उसके बाद I went on to do other things. For example, I worked in State Bank for a while, and then while I was working in State Bank, I appeared in the exam, और फिर I joined the service. So I've been working as a PS officer since 2018 now. Youth collaboration की आपने बात. Okay. First of all, I think it's a huge compliment that the Gharo campus is also here. So we have a diverse audience. How many people are there here from Gharo? कितने लोग हैं? Good, very nice, very nice. अच्छा जी, most welcome. यूथ कोलैबोरेशन की जब हम बात करते हैं तो यूथ कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इकोसिस्टम विच लाइज देयर इन योर सराउंडिंग. मतलब आपको अपने आसपास का इकोसिस्टम का ज़रा अंदाज़ा हो. आई डोंट मीन दिस इन द वे कि यू नो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और आपको कुछ भी पता नहीं है. कुछ बिट्स एंड पीसेस में आपको चीज़ें अंदाज़ा होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट काउंसिल, so if you've joined the student council right away, you know the ladder up कि मैंने पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, and then in the final year probably you become the president, you contest for election. So you're aware of the ecosystem that your organization or wherever you are or wherever you aspire to be, वो क्या है आपको पता होता है, आप उसकी जांच रखते हैं. You know, you follow it कि ना मैंने ये करना है. Similarly, when it's youth collaboration in the bigger perspective, जब आपने society में अपना collaboration की तरफ सोचना होता है, you also need to understand the ecosystem that the society, that the economy, that our Pakistani culture in general has. So for example, if it's going to be collaboration in the sense कि हम एक youth organization बना रहे हैं जो हमारे नेबरहुड में काम करेगी. सो और काफ़ी लोग करते भी होंगे, बिकॉज आई नो कि जब हम भी स्टूडेंट्स होते थे करते थे, अभी भी हम एज ऑफिसर्स जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो काफ़ी लोग करते भी हैं.
सो व्हाट आई वुड से, और हम अपना एक्सपीरियंस से भी यही देखते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम दैट यू आर पार्ट ऑफ. यू माइट कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, बट द इकोसिस्टम इज सच कि आपका आइडिया उस वक्त पिच नहीं हो पा रहा ड्यू टू वट एवर रीज़न. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज गैप है या कोई और गैप है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी अच्छे इंटेंशन से जा रहे हैं मगर जो सामने लोग हैं वो अभी तक उस ट्रजेक्ट्री पे नहीं पहुंचे जिस पे आप आ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कहते हैं कि भाई मैं एआई से आपका ये कर दूंगा, मैं आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी से यहाँ लेके जाता हूँ, बट जो कम्युनिटी है वो ऐसी है कि वो जो है दे नॉट इवन यूजिंग टच फ़ोन राइट नाउ, एंड देर आर पीपल लाइक दैट. So in order to do it in a much better way, collaboration, for the collaboration to actually work, I would recommend कि आप try to learn the ecosystem where you want to operate and start from there. You might have a very good idea, but your idea needs to tinker around the ecosystem where you're part of. आप किसी भी community में चले जाएं जिसमें भी आपने काम करना है या जिसके साथ भी आपने इंटरैक्ट करना है, उसके थोड़े मोडेलिटीज़ होते हैं. वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो ओपिनियन लीडर है, वहाँ पे जो थॉट लीडर है, उससे बात करें, उससे समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं, एंड ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन. एंड आई थिंक व्हेन दैट इज़ डन, there you pitch your idea, and that is the best collaboration which is possible. I would give an example कि हम सदर में काम कर रहे थे. सदर यहाँ से बहुत करीब है. So I was a assistant commissioner in Sadar, and we have some 41 markets operating in Sadar. तो and those markets are like, वो बहुत पुरानी markets हैं. मतलब हमारे अब्बा और शायद हमारे दादा also used to go to these markets. आपने सुना होगा बोरी बाज़ार है, मोबाइल मार्केट है, बहुत लोगों को पता होगी, और फिर इसी तरह और कपड़ों की मार्केट है, बहुत ज़्यादा 41 मार्केट्स आर देयर. और हम लोग गिनती करने आए तो हमें पता चला कि इतनी ज़्यादा है. अब दोज मार्केट्स आर देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम इतनी यंग तो नहीं हूँ मैं, मगर थोड़ी बहुत यंग हूँ कि ना द पीपल हु आर वर्किंग देयर, जो मार्केट्स को ओन करते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम थिंग्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम थिंग्स इज़ डिफरेंट. सो अब उनकी नीड है फिज़िकल स्टोर को रन करना, और फिज़िकल स्टोर के अराउंड जितनी भी आसानी उनके लिए हो सकती है, जैसे पार्किंग का मसला है और कोई भी मसले हैं, वो हल करना. मगर व्हाट वी सी एज द फ्यूचर, जैसे हमने कोलैबोरेशन की बात की, कि वी नो दैट द फ्यूचर इज़ डिजिटल एंड दे नीड टू गो डिजिटल, बिकॉज कल को कोई भी दुकान पे फिज़िकली आने वाला नहीं है, ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास स्पेस है. सो वाइल सॉल्विंग देयर फिज़िकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो मेरे पास एक फ़िज़िकल स्टोर का मसला लेकर आए थे, वो मुझे नहीं कह रहे थे कि मुझे आगे कहाँ जाना है. फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हल करने के साथ साथ वी ट्राइड पिचिंग दैम टू गो डिजिटल, टू गो सोशल मीडिया पे आप अपना स्टोर लेके जाएं ताकि आपकी रीच बढ़े, ताकि आपका सेल्स बढ़े. सो उनका भी कुछ हमने मसला हल किया, कुछ हमने भी उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड किया, एंड राइट नाउ लॉट ऑफ दोज मार्केट्स आर ऑलरेडी डिजिटल. अगर आप बोरी बाज़ार में जाते हैं, वहाँ आपको 5-6 ऐसे लड़के मिलेंगे जो हर स्टोर को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है. They're selling on Facebook, they're selling on Instagram, and they now have a digital footprint. So for collaboration to work, you need to understand कि वो what are their demands, what are their needs, not demand, but what are their needs, where are they coming from, which headspace are they coming from, and what is the idea that you're pitching, and bridge the gap between so that आपका एक implementable चीज़ बन जाए. So yeah. Thank you, Ms. Zara. Indeed, that was a very great insight about youth collaboration. Mr. Sadullah, now I would ask the same question from you. A simple addition to this, that by youth, I specifically think youth, it's something like very plural. It cannot be, an individual thing. It needs to be a collective effort or something like that. And when we talk about youth empowerment, so it comes like पूरा youth एक साथ काम करना, which is at this time is somehow difficult, which youth doesn't take this very seriously, and वो इस चीज़ को मानते भी नहीं है. Youth now takes this thing that youth empowerment is just about individuality, not about a collective work. So what is your say on that? Assalamu alaikum everyone, this is Sadullah Sheikh, and it's good to be back here at my second home. I did my BBA in 2000. I started my BBA from Zabist in 2011 and completed my MBA in 2018 from Zabist. It's always good to be back here at Zabist. And I contested elections for Students' Council in 2014, and alhamdulillah transformed SSC. Tried to work hard for it. Tried to bring collaborate industry and together, and I still remember my first event was the Independence
because it's always our academic year starts like that. So my first period, my first series of events was 2014 Independence Day celebration. It was a week-long event, if I'm not wrong, and we tried to do something different always. We tried to manage sponsors. We tried to manage the like we tried to organize events like these back in the days. And my current role uh, at my company is always what do you call this? Trying to bridge the gap between youth, IT leaders, corporate leaders, policymakers, government representatives, and of course, with 64% of the population, whichever, as you said, so youth is not just the statistics; it's our potential potential army of leaders, which of course will lead the country in the future. So youth, of course, it's more of collaboration. Everything in the fast-paced AI world, it's more of collaboration than bridging the gap between industry, academy, and organizing things and making things happen. So I think it's I got an insight that what is coming from a president of a council being specifically at the Zavis University. I got that insight from you. Now we'll move towards Mr. Abdul Khali. थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल खालिक मेमन है आई एम ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट मैडम मुझसे 3 साल सीनियर हैं आई एम फ्रॉम द 49th शी इज़ फ्रॉम द 46th आई एम एन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस सो बेसिकली हमारी जो सर्विस है इट नॉट ओनली डिस्पर्सेस फंड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बट इट ऑल्सो ऑडिट्स द फंड्स दैट वी डिस्पर्स अच्छा जो आपका क्वेश्चन था ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे गारो से भी बच्चे आए हुए हैं मेरा होम टाउन भी ठट्टा है सो वेन एवर आई पास थ्रू दैट कैंपस आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी तो आई वेलकम देम ऑल तो शायद किसी को मैं जानता भी हूँ ऐसे हो सकता है अगर बातचीत हो तो बेसिकली ना मैं जब सोची थी कि क्या बात करना है तो मुझे पता था ये चीज़ आएगी कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यूथ कोलैबोरेशंस का आपकी अगर 55 से 60% अवाम यंग है तो लेट्स सपोज अगर 20 करोड़ आबादी है 10 करोड़ यूथ है एस्टिमेटेड 60% ऑफ दैट इज़ फ्रॉम रूरल पाकिस्तान इफ़ यू नो तो 6 करोड़ हैं गांव देहात से जहाँ से मैं हूँ ठट्टा रहीम यार ख़ान ऐसे ऐसे 4 करोड़ हैं अर्बन सेंटर्स तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जमाल है एक लड़का ठट्टा में पढ़ता है हाई स्कूल ठट्टा में गवर्नमेंट सिंध की स्कूल है उसमें पढ़ता है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ता है दूसरा है जावियर वो KGS में पढ़ता है या लाइसियम में पढ़ता है या सिटी या बीकन में पढ़ता है फॉर दैट मैटर वो पढ़ता है कैम्ब्रिज के बुक्स दोनों की एज 15-16 साल दोनों बड़े हो रहे हैं दोनों की एस्पिरेशंस हैं तो लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना दे एंड अप बिकमिंग डिफरेंट चिल्ड्रन और अडल्ट्स so they get into that corporate or government sector or they get into that military or whatsoever sector with a different educational baggage, different socio-political motivations and they get into a democratically elected system कि आपको वोट भी देना है दोनों की पढ़ाई different you know तो ये जो conflict आता है ना बच्चों के बीच में ये बड़ा मसला है इस मुल्क का जब तक आपका एजुकेशनल निज़ाम सेम नहीं होता ना होमोजेनस नहीं होता तब तक आप एज ए नेशन प्रोग्रेस नहीं करते मैंने 12 क्लासें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ी हैं आई वॉज लकी इनफ कि फाइनेंशियली कुछ डिस्टेबल थे एज में आ गए तो जो इंटरमीडिएट तक मुझे ये नहीं पता था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या होती है या कुछ कंपैरेटिव रिलीजन भी होता है यू नो लेकिन यहाँ पे तो भाई 3री-4थी क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं कंपैरेटिव रिलीजन वो डिफरेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं हमारे यहाँ अगर वो फर्स्ट ईयर इंटर में मैडम बैठी हैं मैं सीनियर हैं ऐसा मेहमान के हाथ के बच्चे हैं मैं 10 साल पुराना स्टूडेंट हूँ को इतना नहीं तो फर्स्ट ईयर इंटर में ना जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम शर्माते थे साथ भाई भी पीछे से सिंध से ही हैं उनको पता होगा यहाँ पे तो क्वाइट कॉमन क्या मतलब क्या कोई रॉकेट साइंस है तो मसला ये होता है ना जब 2 डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ यूथ्स बड़े होते हैं ना एक मुल्क में तसादुम तब फैलता है आप अपने बच्चों के साथ
रोड पे जा रहे हैं, मसला पता नहीं क्या है, रोड ब्लॉक कर दिया 400 लोगों ने। ये वही यूथ है जो डिफरेंट पड़ा है, जिसने रोड ब्लॉक किया। उसको पता होगा ना कि सिविल एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, भाई साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग क्या होती है, कोई तंग हो रहा है रोड ब्लॉक नहीं करना, ट्रांसफार्मर में कुंडा नहीं मारना, ट्रांसफार्मर में कुंडा मारता है ना फट जाता है ट्रांसफार्मर, लाइट चोरी नहीं करनी, एथिक्स समझाना है। तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन है इस मुल्क की अकॉर्डिंग टू मी। मैं थोड़ा बोलता हूँ फ्री होके, आई होप पीपल डोंट माइंड। तो आई गेस जब तक गवर्नमेंट एजुकेशनली ना होमोजीनियस नहीं करेगी सिस्टम को, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे। जैसे बोलते हैं जैसी आवाम वैसे लीडर, तो तभी आपको दिखते हैं लीडर वैसे। आई थिंक आप स्टूडेंट काउंसिल के हैं, प्रेसिडेंट हैं, साद भाई हमारे टाइम पे प्रेसिडेंट थे, व्हेन आई गॉट एनरोल्ड ही वाज द प्रेसिडेंट, उनसे सीनियर है। मैंने कुछ स्टार्ट किया था ज़ेबिस्ट में, कुछ पॉलिटिकल काउंसिल टाइप चीज़। मैंने कहा थोड़ा बहुत लेट्स डू इट, लेट्स स्पाइस इट अप अ बिट। बहुत ही अच्छे से रिजेक्शन आई थी, क्योंकि मैं आउटसाइड कराची का बच्चा हूँ, तो सोशो पॉलिटिकली मैं कह सकता हूँ ज़्यादा थोड़ा रगड़ किस्म का था। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब सिंध यूनिवर्सिटी में होता है, लम्स में होता है, मेहरान में होता है, यहाँ क्यों नहीं होता। तो एक सिंध अभ्यास एकेडमी के नाम से यहाँ पे एक होती थी एकेडमी, अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसके चैनल के थ्रू वी स्टार्टेड टू डू इट। जब तक आपके काउंसिल्स में कोई पॉलिटिकल विंग नहीं होगा ना, आपके बच्चे वैसे अवेयर नहीं हो सकते। आपका एक क्वेश्चन भी था उसमें कि क्या आप हाँ यू आर कमिंग टू दैट, वो मैंने कहा पहले ही बोल दूँ शायद, फिर आप मुझे बोलने ना दें। तो बस 1 मिनट लूँगा, फिर यू कैन गेट ऑन टू योर क्वेश्चन। तो आप अभी जब बड़े बड़े नाम आप देखें ना पाकिस्तान के सैनिटर्स, ताज हैदर साहब, एजाज हसन साहब, परवेज़ रशीद, इवन फारूक सत्तार साहब, बहुत बड़े लीडर्स हैं। आप उनसे अग्री करें डिसएग्री करें, दैट्स डजंट रियली मैटर, लेकिन वो बड़े ऊंचे कद के लीडर हैं। ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के यू नो बेसिकली आपकी जो तालीम गाहें होती हैं ना, दर्सगाहें होती हैं, वो दे आर सपोज टू बी पॉलिटिकल नर्सरीज। बच्चे सोशल पॉलिटिकल अवेयर ही वहाँ से होते हैं। स्कूलों में क्या होता है मुझे क्या पता कि भाई 12 मैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने फर्स्ट जब मैं 9th मैट्रिक में पढ़ के गया ना गवर्नमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने, 9th में पढ़ के गया, मैंने चीटिंग नहीं की। मैंने कहा यार ये चीटिंग कौन करता है, मतलब मैडम मैं वहाँ पे गया हूँ, जो क्लास में 15-16 नंबर आता था ना मुझसे, वो A1 था, मैं A ग्रेड था। मैंने कहा छोड़ो मैं भी चीटिंग करता हूँ, क्या है मतलब क्या है ये जुल्म है, मतलब हम पढ़ ले। तो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना यूथ, दो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ यूथ दैट आर ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री, ये अल्टीमेटली चोरियाँ भी करते हैं, ये ढाके भी डालते हैं, ये रोड भी ब्लॉक करेंगे, ये आपके मॉन्यूमेंट्स भी तोड़ेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट एंड वी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल रियलाइज दिस डिफरेंस एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। तो आई होप कि बहुत सीरियस नहीं हो गया डिस्कशन। तो दैट वाज माय 2 cents। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छा इंसाइट दिया, और मेरे आगे वाले भी क्वेश्चंस आपने जो है एक सॉर्ट ऑफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया उसके लिए। एंड वी हैव मोस्टली काउंसिल मेंबर्स हियर, एंड ऑल द काउंसिल मेंबर्स आर वेरी यू नो दिस particularly interested about the student politics and everything, because आजकल की जो youth है I believe are very mostly directly or indirectly indulged in this student politics and everything. So मैं particularly not from just Mr. Sadullah सबसे पूछना चाहूँगा, because at any part of time हर कोई ना कोई every youth at school, at university, at college time इस चीज़ का हिस्सा बनी, and they have experienced this. So how important do you think that the student politics is in the student life, in the student academics, and in the student growth, and in the youth empowerment? First we'll start from Ms. Zara. I think how का जवाब तो already हमें मिल गया। I would not disagree obviously. Politics, student politics is important, but important को थोड़ा समझ लेते हैं कि important क्यों है, क्या है, ज़रा उसको थोड़ा like let's unpack it कि करना क्या है। सिर्फ ये बोलना कि I want to be a student politician और I want to join the youth parliament हुआ करते थे पहले इस्लामाबाद में, शायद कराची में भी थे, but I remember इस्लामाबाद में हुआ करते थे। So I want to become a youth parliamentarian और ये सब। So that sounds fancy, it is good, it is there, that's an ecosystem that I was earlier talking about कि आपका ecosystem है जो exist करता है और आप इसका पता अगर रखते हैं तो आप इसमें participate करेंगे। यूथ पॉलिटिक्स असल में हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो, जैसे इन्होंने भी बात की, आई वुड ऐड टू इट कि हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम बन गया है, असल में हमारा जो निसाब या करिकुलम बन गया है
very rarely do we have a discussion on what our rights are, what our moralities are, what our duties are. मतलब हम ये तो कहते हैं कि मेरा हक है मुझे दें, मगर हमारी ड्यूटी क्या है उस पर हम काफ़ी रेयरली बात करते हैं. मैं अपनी भी बात, इट्स नॉट लाइक कि आई एम गिविंग अ लेक्चर कि आपको ये करना चाहिए. ये मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे भी शायद नहीं पता होगा कि मेरी ड्यूटी क्या है. शायद कुछ लोगों, अगेन इट्स अ मॉरल स्पेक्ट्रम, कुछ लोग उस पर हाई होते हैं, कुछ कम होते हैं. इट्स नॉट अ पर्सनल थिंग. मगर आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे होते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर रखते हैं, उस चीज़ का भी काफ़ी आप पे इम्पैक्ट होता है. तो पॉलिटिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप वेरी अर्ली ऑन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या कोई एनी फॉर्म पॉलिटिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू क्वेश्चन कि मेरा राइट क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरी लिबर्टीज़ क्या हैं, किस इंस्टीट्यूशन, किस लॉज के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ. दीज आर सुन के थोड़े बोरिंग लगते हैं, मगर एनी पॉलिटिशियन, स्पेशली द नेम सर टुक, वो दे आर नॉट देयर अनलेस दे नो दीज थिंग्स. तो अगर आपको अपना लॉ नहीं पता, अगर आपको अपना मैं नहीं कह रही आप कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लें जैसे 14 पॉइंट्स हमें याद कराए जाते थे, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दे आर व्हाट दे आर. किसी एक लाइन को पकड़ लें. फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, हैं अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, पर हम याद कर लेते हैं भाई फंडामेंटल राइट, मेरा राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फलाना, राइट टू लाइफ, ये सब है. मगर हर लफ्ज़ का मतलब क्या है? अगर जितने भी इधर ऑडियंस में लोग बैठे हैं, सारे एक एक फंडामेंटल राइट का एक एक लाइन उठा के उस पर सोच विचार करने लग जाएं, या 3 का ग्रुप बना के उस पर पढ़ के उसको डिस्कशन करने लग जाएं, आई थिंक वो दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर स्टूडेंट पॉलिटिक्स. क्योंकि जब आपके पास मीट होगा, जब वज़न होगा, जब ज़रा गाढ़ा होगा आपका रूट, तभी वो पेड़ भी ऊपर ज़रा स्ट्रॉन्ग होगा. इफ़ यू डोंट नो कि आप फ़ाइट किस लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ाइट करेंगे? 2 दिन में वो फ़ाइट बंद हो जाएगी. मेरे जैसा ही कोई ACDC आपका प्रोटेस्ट आके उठा देगा, बिकॉज आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा. So to understand student politics in its core, it is important इस age पे especially, because you're already in an academic environment, you're already interacting with a lot of fellows of your age, especially from different backgrounds. कुछ रूरल से आए हैं, ज़रा उनका समझें. कुछ अर्बन से आए हैं, ज़रा उनका समझें. कुछ पेरी अर्बन से आए हैं. somebody living in Clifton, somebody living in Sadar would be different from somebody living in Kurangi. I'm not saying they are right or wrong or good or bad. They are different, and they have to be different because each locality has its own dynamics. I've lived in Gulistani Johar for a very long time. I grew up in a different neighborhood. Both neighborhoods were very different. So I like उधर मैं बड़ी हुई, इधर मैं एडजस्ट हुई, मगर फिर अब मैं उसको भी देखती हूँ कि वो किस तरह चलता है. So try to understand again ecosystem. I like the word ecosystem. तो उस पे आते हैं and try to build a foundation, especially इस एज से. पॉलिटिक्स में कोई हर्ज नहीं है, मगर बगैर वज़न के, बगैर कंटेंट के, बगैर राइट अवेयरनेस के वो पॉलिटिक्स आपको कहीं भी नहीं ले जाएगी. सो आई वुड अगेन रेकमेंड कि अभी आप स्पेशली स्टूडेंट काउंसिल कैन टेक द लीड. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किसके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं या किसके फेवर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं. आपके लॉज क्या हैं, आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आपके मुल्क की पॉलिसी क्या है. मतलब हम कोर्सेज पढ़ते थे जिसमें पॉलिसी का वर्ड यूज़ होता था और हमें बताया जाता है ये पॉलिसी है. अब वो लिखी कहाँ है, वो है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो लेके कहाँ जा रही है, वो अभी कहाँ खड़े हैं, आगे कहाँ लेके जाएगी, उसके आगे क्या जाएंगे, ये सब उस पॉलिसी एक वर्ड के अंदर इट हैज़ टू बी उसके अंदर सारा वो कुछ होता है. तो वो हमारे पास अभी इफ़ वी स्टार्ट थिंकिंग अलॉन्ग दीज लाइंस, अगर हम ये अभी सोचें, अभी सवाल करें, ज़रूरी नहीं आपको सारे सवालों के जवाब अभी मिल जाएं. यू कैन राइट डाउन दोज क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आंसर्स. एक जवाब आपको शायद ये दे दें, एक जवाब आपको वो दे दें, एक जवाब शायद आपको वो दे दें, बट ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस जिसके आप आंसर्स ढूंढें. दैट विल हेल्प यू बिल्ड द फाउंडेशन एंड अगेन टेक स्टूडेंट पॉलिटिक्स फॉरवर्ड. एंड आई वुड लव एज on a personal level, I would love to see a very informed student politics or a very informed student body that knows what it is doing, that is aware, that has a voice, and the voice can only be built if you have a strong foundation, and the foundation comes from research. Every political organization across the world has a very strong research body associated with it. आप किसी भी, अब सोशल साइंसेस के बच्चों को शायद ज़्यादा पता हो, हम BBA वालों से हमें इतना नहीं पता होता था, बट अगर आप दुनिया भर में कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखें,
उसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसर्च विंग होगा। और वो रिसर्च विंग क्या करता है, वो रिसर्च विंग कॉन्स्टेंटली आपका लिटरेचर पढ़ता है, लिटरेचर बिल्ड करता है, उस लिटरेचर पे बैक करके आपकी पॉलिसी बनती है, एंड देन दैट पॉलिसी यू टेक टू द पब्लिक। अदरवाइज इफ़ यू जस्ट राइट 2 लाइन्स एंड से कि ये पॉलिसी है, पब्लिक बोलेगी मेरे काम की नहीं है, मैं क्या करूँ। सो ट्राई टू एम्बेड रिसर्च विथ योर पॉलिटिक्स एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। Yeah, I guess that was a good insight about student politics. Now moving towards Mr. Sadullah, आपसे मैं specific student politics का council related भी मैं पूछना चाहूँगा because you had that experience and we as a newbies want to know about that. And again एक चीज़ मैं जो इस चीज़ में mention करना चाहूँगा that by politics today the youth means that we can do anything, go beyond the limits, and specifically वो politics को define करते हैं that anything in any way is politics. So आप उस चीज़ को किस तरह define करते हैं? We want to know from you. Thank you. So student politics is more of about how you do it rather than with whom you are doing it. So it can be a cause of distraction when it comes to academics, when it comes to student politics in the councils, because I was part of it. But if done with ethics, discipline and growth mindsets, of course, it can help you understand people. It can be a crash course for your leadership qualities, and it can it can develop an art of negotiating with administration. Of course, you must be facing different challenges on day-to-day basis with the Zabis management, because we also did this. But so it all depends upon how you do the student politics. So I feel that if you do it in a positive way, it can be a cause of growth for you. It can bring up growth mindset for you, and it can be a source of self accountability too. Because I think this is something which no textbook can teach, and this is only a practical learning which one can have in its student's life. Thank you so much. And now Dr. Abdul Khalik. डॉक्टर नहीं No, हूँ। sorry, Abdul Khalik, Mr. Abdul Khalik. अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड से कि पॉलिटिक्स किस चीज़ को आप कहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। व्हेन यू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वन रियलाइजेस कि व्हाट पॉलिटिक्स रियली मीन्स। आप अगर कहें कि भाई यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल विंग्स हो, वो तो गलत है। जैसे होती थी जामिया कराची में होती थी, सिंध यूनिवर्सिटी में होती थी कि भाई ये पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल विंग है, MQM की, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ आई थिंक अनरेगुलेटेड। उससे क्या होता है कि देन उस पार्टी की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आती है अपनी एजुकेशन में, करिकुलम में, बच्चों में। तो जैसे साद भाई ने कहा ना कि एक आई थिंक इट्स मोर ऑफ अबाउट नेगोशिएटिंग योर डिमांड्स एंड हाउ यू कैन बी सोशियो पॉलिटिकली अवेयर कि क्या होना है। मसले होते क्या हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब आप देख लें। मैं बोलता हूँ ना कि भाई इस मुल्क में मसले क्या हैं यूनिवर्सिटीज़ के। सर गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं है, किधर बच्चे पार्क खड़े। ये काम है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कि भाई मैनेजमेंट से बात करें, कोई खाली प्लॉट दे दे, बच्चे गाड़ी तो खड़ी कर सकें। कि टाइमिंग्स क्लास की ऊपर नीचे हैं, टीचर समझ नहीं आ रहा, यही मसले हैं। और कौन सा कोई आपको इनकलाब लाना है। मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम देखें जनरली यही बेसिस होते हैं मसलों के। पार्किंग नहीं मिल रही, क्लास की टाइमिंग कम कर दें, एग्ज़ाम्स आगे पीछे कर दें, सैटरडे संडे को स्कूल ना खोलें, यही होती है ना चीज़ें। तो आई थिंक वो जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन आपको आती है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, किसी अथॉरिटी के से बात करनी है, प्रेसिडेंट साहिबा से बात करनी है अगर आपको एक्सेस मिल जाए, या किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपको बात करनी है, यू नो। तो वो जो आपको एक स्पेस क्रिएशन होती है ना एक इंसान की, आई थिंक वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बहुत आती है। एंड सेकेंडली आई थिंक आजकल जो एक अडेप्टबिलिटी ना बच्चों में नहीं है, यूथ में, दे कांट अडेप्ट, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। तो ये सब चीज़ें आई गेस वो जब आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, एक दो क्लासेस बंक कर लेते हैं, ये वो, तो आप चार चीज़ें उससे सीख भी जाते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव इट इज़ मोर अबाउट योर कि आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग कितनी वाइडन होती है उस सियासत से। यू डोंट हैव टू गेट मिलिटेंट अबाउट इट, यू नो, यू कैन एमिकेबली सॉल्व इशूज़ ऑल्सो। साद भाई करते थे बड़े एमिकेबली सॉल्व इशूज़, मुझे याद है। तो यू कैन एमिकेबली सॉल्व इशूज़, इतना कोई मसला होता नहीं है। बट ये कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए मसले हैं क्या, तभी पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं ना, क्योंकि पॉलिसी लेवल पे तो होती नहीं चीज़ें। तो छोटे मोटे मसले हैं वो आप सीख जाते हैं, देन रिफ्लेक्ट होते हैं आफ्टर यू पास ऑन
यूनिवर्सिटी के बाद अब जाते हैं तो आपको पता है यार ऐसे नेगोशिएट करते हैं, ऐसे बात होती है, वैसे होती है. तो आई थिंक दैट इज़ एन स्किल दैट स्टूडेंट पॉलिटिक्स गिव्स यू, एंड आई थिंक they should be mandated in across universities. Thank you. Thank you so much. I guess this was a very good insight about the student politics, and my council specifically present here has got an insight about it, and I hope so they will follow it. Acha, being an alumni present here at Zabis, now let's somehow talk about your life at Zabis. That how did your time at Zabis, whether through academics, activities, or leadership roles, shape your approach to leadership in your career? And what's one leadership skill that you developed at university that helps you still today? बहुत पहले का टाइम था, बट या नहीं ऑब्वियसली जो चीज़ें अच्छी याद रहती हैं वो दे नेवर लाइक गो आउट ऑफ योर मेमोरी. I think if I recall, Zabis had a very good culture of inclusivity from what I remember back then, and I think it's still like that. Inclusivity का मतलब है आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे सर ने पहले मेंशन किया था कि खालिक साहब ने कि एक बच्चा रूरल से आ रहा है, एक अर्बन से आ रहा है, एंड हियर व्हेन यू लैंड हियर वेर एवर यू कम फ्रॉम यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू ट्रीटेड बाय अदर्स. लाइक आप सारे यू वर ऑन वन पेज एंड एवरीबडी गॉट ऑल अपॉर्चुनिटीज़, एंड देन इट्स ऑब्वियसली फिर कॉम्पिटिशन होता है, वो दैट्स नेचुरल, वो हर जगह होता है. बट एटलीस्ट बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड यू नेवर यू डोंट सी अ गेट कीप के आप कहाँ से आए. सो इंक्लूसिविटी वॉज एक कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी में हम सारे लैंड किए थे जब हम आए थे, हमारा फर्स्ट मंथ था. उसके बाद आई थिंक वन की एस्पेक्ट दैट आई रिमेंबर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर वॉज के सोसाइटी ज्वाइन कर लो. आई थिंक आप लोग का भी होगा, सोसाइटी ज्वाइन कर लो. पता नहीं होता था सोसाइटी क्या करती है. ऑब्वियसली हर किसी का मैंडेट होता है. फेयर ऑल्सो शुरू में होता है, आप लोग ने भी किया होगा. फेयर होता था, एंड यू गो अराउंड, यू टॉक टू एवरी सोसाइटी, दे आर वेरी वेलकमिंग विद अ स्माइल. दे लाइक हाँ आप आ जाएं, हाँ ये फॉर्म है आप भर लें, ये कर लें. दे आर ऑल नाइस, वेन नाइस, ऑब्वियसली देयर इज नो हार्म इन बीइंग नाइस. तो जो है सोसाइटी ज्वाइन कर लो, एंड वी ऑल फ्रेंड्स ऑल्सो वी लाइक सब ज्वाइन कर रहे हैं. फोमो हो रहा है, उस वक्त फोमो नहीं पता था पर हो तो रहा था, तो सोसाइटी हमने भी ज्वाइन कर ली. So we ended up joining entrepreneurial societies. It was a relatively new society at that time. हमसे एक साल ही seniors थे जिन्होंने वो बनाई थी. Very young, hip at that time. So we joined that. That society, and Faz Very sir is here. He was our faculty supervisor for SCS at that time. So हमने join तो कर लिया, पता नहीं था कि क्या होगा. But hindsight में that society join कर लो helped us so much कि we were able to come out of our comfort zone. जैसे दोनों ने इधर mention किया कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए ना आपको एक पुश चाहिए होता है. कभी आपको कोई ऐसे खुद ही पुश मिल जाता है वही वाला कि सोसाइटी ज्वाइन कर लो. कभी दोस्त ले जाते हैं कि चलो चलो मैं भी चल रहा हूँ तुम भी चल लो. कभी कोई और तरीका हो, कभी आप खुद चले जाते हैं. देयर आर ऑल्सो सेल्फ ड्रिवन पीपल. पर वो दैट फर्स्ट स्टेप आई थिंक was what took me forward. एंड वो जो सोसाइटी ज्वाइन कर लो, एंड देन व्हेन यू जॉइन अ सोसाइटी फिर आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर यू ट्राई टू गो अप द लैडर. So and you're part of an environment outside of your classroom. क्लास में तो आप वही 20-30 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. अगर आप सेम सेक्शन के साथ जा रहे हैं तो चारों साल आप वही 20-30 आपके दोस्त होते हैं. बट व्हेन यू जॉइन अ सोसाइटी और अ कपल ऑफ सोसाइटीज़ दैट यू कैन, तो फिर यू हैव अ फ्रेंड सर्कल आउटसाइड ऑफ दोस्त. फिर आप उनसे भी सीख रहे होते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. So that is something that Zabist helped me immensely, I would say, कि coming out of my comfort zone, going out of the class. सिर्फ क्लास में नहीं आना कि 11:30 2:30 क्लास है, 11 बजे पहुँचे, आधा घंटा चिलिंग की, 11:30 2:30 अटेंड करके 3 बजे वापस चले गए. नहीं, I would always, I remember, stay back 3 hour extra for any society work or any project work. और वो 3 hour was the socialization that helped me build a lot of connections that again support you in different ways that you don't realize at that time, and you might realize them later as you grow up in Zabist and out of Zabist. So that was something I remember from Zabist, and that also again helped me in my leadership style. Was कि उस वक्त तो था कि society join कर लो, but the instant of taking initiative I think was what
took me forward. And with initiative असल में एक चीज़ जब आप उठाते हैं तो उसके साथ पेरिफ्री में और भी चीज़ें होती हैं that support you. जैसे जब आपने ज्वाइन कर लिया, आपने इनिशिएटिव ले लिया, देन यू नीड टू नेगोशिएट. वो नेगोशिएशन स्किल आपका बन रहा होता है थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स. फिर आपका कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें, डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना है, कभी मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करना है, कभी किसी और से, कभी स्पॉन्सर से इंटरेक्ट करना है. सो यू आर इन द यूनिवर्सिटी बट यू टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर और फ्रॉम द आउटसाइड सेक्टर. तो वो उसको किस तरह मैनेज करना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शेप योर लीडरशिप स्किल in a way कि you now know how to lead a group or you now know how to lead a specific idea even forward. सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं करना होता, आइडिया को भी मैनेज करना होता है जो आपका साथ साथ डेवलप कर रहा होता है. So I think I give a lot of credit to Zabis for instilling within me the idea of taking initiative. Unless you go forward, take the initiative, things would not change drastically. To make changes in your life, and those changes can be personal, professional, of any sort, you need to take initiative, and I think that's what I took from here. I guess this was a very good insight about the student societies, and I wished कि हमारे पास इस वक्त ज़ैबिस की पूरी स्टूडेंट्स होती और ये चीज़ सुन लेती. एंड वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सोशल मीडिया पे डलनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चले what actually student societies do, the power acquire they, and how they make the leaders here, and they are here now in front of us. So big round of applause for them. Now moving towards Mr. Sadullah, please. So Zabist was kind of more of a training ground for me when it comes to real leadership. And academics can only give you knowledge, but when it comes to leadership, आपको adaptability, resilience, or people management skills, public engagement skills you can develop in yourself. So Alhamdulillah, Zabist gave me an opportunity to polish those of my skills. And of course, when it blended with academics, so you have to survive in the industry. Being in the corporate industry, it's never really easy. So one of the biggest quality which Zabist made me develop in myself was towards the end of my life at Zabist at BBA was more of developing under pressure. How one can perform well under pressure and making an informed decision making quality, making an informed decision making for yourself and for your team. So that's how Zabist helped me build myself and develop my skills. And when it comes to leadership, I think leadership is not only about being in charge of everything. Leadership is about creating an environment for others to perform and be accountable for it, and then deliver accordingly. Very well said. I guess एक चीज़ ज़ाबिस से जो ऑलमोस्ट सब सीख लेंगे, अंडर प्रेशर काम करना वो तो सभी सीख लेंगे, स्पेसिफिकली काउंसिल में रहने वाले बच्चे. तो अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स यू सर प्लीज़. अच्छा, मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ. ये तो माशाल्लाह दोनों बिजनेस के हैं. तो सोशल साइंसेस वालों का एक डिफरेंट ही होता है एक्सपोजर ज़ाबिस्ट में. तो हम थोड़ा बहुत शायर भी बन जाते हैं एट द एंड ऑफ आवर टर्म. तो लास्ट में ना तब सोशल मीडिया पे बहुत होते थे, अब तो मैडम भी नहीं होंगी, मैं तो नहीं हूँ भाई. आफ्टर गेटिंग इनटू गवर्नमेंट सर्विस इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ. यू कैन ट्वीट और राइट समथिंग एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. तो तब मैंने लिखा था, आई विल ऑलवेज मिस योर वाइट बिल्डिंग्स एंड ब्लू बेंचेस. ज़ाबिस्ट की एक वाइब है अपनी ना. तब 90 ऑपरेशनल था हमारे टाइम पे, अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली. तो उसकी तो अपनी ही कोई वाइब थी 90 की ना. यू कुड सी के देयर इज़ सम हिस्ट्री व्हेन यू सिटिंग इन दोज पार्क्स. वो कभी मेंटेन होते नहीं थे, जले हुए पार्क्स थे, लेकिन उनकी भी अपनी वाइब थी टू बी ऑनेस्ट. तो जब अच्छा, मैंने IBA का भी फॉर्म भरा था सोशल साइंसेस में, एंड ज़ाबिस्ट का भी भरा था. IBA ने तो मुझे मैथ्स में माइनस दे दिया ना कि भाई तू तो मत दिया. ज़ाबिस्ट एज मर्सीफुल एंड इंक्लूसिव इट इज़, उसने मुझे आने दिया. एंड मुझे बिकॉज CSS करना था तो मैंने कहा डिग्री यही करनी है, क्योंकि वो बिकॉज इट कवर्स 70-80% ऑफ द सिलेबस. अच्छा, हमारे टाइम पे कुछ टीचर्स थे ऐसे जो मुझे क्वालिटी मिली, मैं आपको बताता हूँ ज़ाबिस्ट में. एक सर बिलाल जुबैदी थे, वो अब जा चुके हैं. अली शाह थे, आई थिंक वो भी आजकल नहीं है. मुक्तदा साहब, वो तो उनकी ये पास्ट हुए. तो कुछ ऐसे एक बंच ऑफ टीचर्स थे. मैडम शाजिया थी, अभी भी हैं.
तो वो जो बंच ऑफ टीचर्स थे ना, वो डिफरेंट ही किस्म के टीचर्स थे. मतलब सर बिलाल की क्लास में आप कुछ भी बोल दें, यू वुडंट माइंड, और मैं कुछ भी बोल देता हूँ एज अ पर्सन. देन सर अली शाह थे, वो भी हमेशा ना, और उनकी एक आदत होती थी, वो हमेशा पिन करते थे बच्चों को थोड़ा कि बोलें ये. तो बिकॉज आई वॉज फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो थोड़ा शाय सा कोने में बैठा. तो ही नोटिस्ड, सर बिलाल नोटिस्ड, अली शाह साहब नोटिस्ड कि यार ये बच्चा बोलता नहीं है क्यों. बाल तो बड़े हैं, पोनी भी बांध रहा है, शरार कमीज पहन रहा है, हाथों में कड़े भी हुए हैं, मतलब फैशनेबल तो है, बोलता क्यों नहीं है, थोड़ा बताएं ना. तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा ओपन अप किया एज पर्सन. एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, दे सॉ के इसकी ना रेगुलेशन में कुछ इश्यूज़ हैं, इसके थोड़े बहुत ही रफ अंदाज है, इसके थॉट प्रोसेस थोड़े रगड हैं. ही इज़ अ लिटिल टू इनटॉलरेंट, बिकॉज ऑब्वियसली रूरल बैकग्राउंड के थोड़े लोग होते हैं इनटॉलरेंट. वो जब शहर में आते हैं ना, दे एंड अप टॉकिंग टू सच पीपल. वो बोलेंगे यार ये क्या कह रहा है, मतलब ये भी होता है, मतलब ये रोड इतना अच्छा है, ये कह रहा है टूटा हुआ है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे गांव में तो ये भी. तो आई बिलीव, और जब बिकॉज मैंने इंटरमीडिएट किया है, मेरी बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन है यार. मैं अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिलते आप शायद मुझसे बात ना करते. मैंने बहुत काम किया है ना अपने आप. तो जब मैंने यहाँ पे करिकुलम पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो बहुत ही, एज मैडम सेड, बड़ा इंक्लूसिव इदारा है. उन्होंने ना उन थॉट, ना सिर्फ मेरी बातों को एक्सेप्ट किया उन टीचर्स ने, इस प्रोग्राम ने सोशल साइंसेस के, ना सिर्फ बहुत फ्री एंड दिया हुआ है सोशल साइंसेस के बच्चों को, जैबिस ने अभी भी दिया हुआ होगा, आई बिलीव सो. तो ना सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट की कि यार इसकी एक अजीब मेंटालिटी है, उसको एक्सेप्ट करें, बट रेगुलेट बहुत किया गया मुझे क्लास में. टॉलरेंस मुझ में बहुत आई. आई अडेप्टेड अ लॉट एंड आई चेंज्ड विद इन अ ईयर और सो. बिकॉज अगेन आप जब एक ऐसी चीज़ें पढ़े ना आके फर्स्ट टर्म में कि यार मज़हब में ये भी है, साइंस ये भी होती है. अच्छा, मैंने जो हिस्ट्री जैबिस्ट में आके पढ़ी, हम 12 क्लास में पाकिस्तान की हिस्ट्री वो नहीं पढ़ते. आप सबको पता होना चाहिए ना. हमें जो इंटरमीडिएट तक हिस्ट्री पढ़ाई गई है पाक अफेयर्स में, आप बोलेंगे ये तो ब्रेन वॉश हो रही पूरी जनरेशन, ये तो झूठ बताया जा रहा है इन्हें, पता नहीं क्यों पढ़ाई जा रही है, मुझे नहीं समझ आता. अच्छा, अगर यहाँ ना तजाद हो, तजाद तो है नहीं, ये भी इदारा पब्लिक सेक्टर समझे इदारा है ना, बच्चे पाकिस्तान के इधर पढ़ रहे हैं, उधर भी पाकिस्तान के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री डिफरेंट क्यों है. यहाँ पे अब अली शाह में हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उनकी तो हिस्ट्री और एडवांस होती थी. तो मैंने कहा यार ये भी था पाकिस्तान में, ये भी 45 में हुआ, 46 में हुआ, ये भी हमारे लीडर थे. हमें तो सिर्फ कायदे आज़म का पता है, 6 और भी थे, मुझे तो नहीं पता. नोट पे तो 1-2 जने हैं ना. तो इस यूनिवर्सिटी ने ना रियलाइज़ किया है उस चीज़ को, आई बिलीव इस डिपार्टमेंट ने सोशल साइंसेस के रियलाइज़ किया है कि बच्चों को उनकी जो अंदर की एक एक शायद जो डिफरेंस है ना, उसको एक्सेप्ट करें, उनको रेगुलेट करें, और अच्छे से रेगुलेट किया. ऐसा नहीं था कि मुझे एक बैंडविड्थ से उठा के दूसरे बैंडविड्थ पे, ऐसा नहीं था. तो वो फ्रीक्वेंसी उन्होंने मैच की, बड़ा आई वाज वेरी हैप्पी. एंड आई बिलीव, और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, मैंने उस टाइम में भी किया था कि अगर मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया तो वॉज बिकॉज ऑफ जैबिस्ट. अगर मैं वो ना लेता और मुझे वो टीचर ना मिलते, मैं गॉड ब्लेस देम ऑल, जहीं भी अल्लाह करे उनकी और तरक्की उन्हें मिले, तो आई थिंक आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू जैबिस्ट फॉर दैट. दैट इज़ अबाउट इट. थैंक यू. Thank you so much. I guess we have a lot of inspiration to gain from just these 3 alumni of Zabist. So I'll be moving towards another question, yet it is an important question to be asked today, specifically incorporating with this topic we have, that do you really think that today's youth are more capable or more distracted compared to previous generations when it comes to leadership and nation building? And do you agree with the view that they have leadership potential but lack patience and discipline? Yeah, too labeling. I think it's too labeling. I would बहुत ज़्यादा labels लगा रहे हैं अब youth पे. I would not like that because यूथ वाला जो हमारा टाइम होता है ना, इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. यू कांट, जैसे इन लोगों ने भी बताया कि द डे यू स्टार्ट यूनिवर्सिटी एंड द डे यू ग्रेजुएट, आपको खुद अपने अंदर फ़र्क नज़र आ रहा होता है. मुझे भी आया था, मेरे साथ के सब लोगों को आया था. एंड आर सम ऑफ आवर टीचर्स ऑल्सो पॉइंटेड आउट, देयर वाज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ आवर्स, मैडम आयशा हुआ करती थी. शी टॉट अस इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड शी टॉट अस अगेन इन 6th सेमेस्टर एंड शी सॉ विजिबल डिफरेंस इन ऑल ऑफ अस. तो आई थिंक लेबल हम नहीं लगा सकते कि पहले जो है बहुत कोई दे हैड बेटर विजन एंड नाउ दे डोंट. येस, व्हाट डिफरेंस नाउ इज़ कि क्वांटम बहुत बढ़ गया है.
जैसे स्टेटिस्टिक्स भी शेयर हुए कि द परसेंटेज ऑफ यूथ इज़ ह्यूज, एक्सेस बहुत बढ़ गया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस नाउ, वॉट एवर आई नीड. हम अब तो चैट जीपीटी भी है, यू नो, पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी लाइक गूगल, मे बी नॉट जस्ट दिस जनरेशन, द ओल्डर वंस, बट यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. हमारे टाइम पे व्हेन वी वर स्टार्टिंग, I sound very old. When we were starting, we would still go to the library to go look for something. I remember internet was there. You would obviously Google Scholar भी होता था, but then you would still want to go to library to see कि यार what if मुझे कोई अजीब सी book भी मिल जाए. You know, there's no harm in looking it up. Not that it's not done now, but quick consumption of information का access अब और ज़्यादा बढ़ गया that you don't want to spend, you know, 15-20 minutes or 30 minutes in the library. जो जाते हैं कोई हर्ज नहीं है, और जो नहीं जाते कोई हर्ज नहीं है. जस्ट ट्राई टू ओवर दिस, आपकी ये जर्नी, आई थिंक यूथ इज़ अ जर्नी, आई वुड से यू कांट पिन पॉइंट इट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम कि अभी ये है. इस जर्नी में कभी भी स्टैगनेंसी ना आने दें. वॉट आई वुड से कि स्टैगनेंसी ना आने दें कि बस मैंने, आई थिंक द बिगेस्ट ड्रॉबैक दैट एनी पर्सन कुड हैव इज़ मैंने बहुत सीख लिया है और बस. वो आप 60 के भी होंगे ना, तब भी आप नहीं कह सकते कि मैंने बहुत सीख लिया और बस. नो, you always learn. Especially अब तो technology is the biggest example because we look at it in front of our eyes कि it's constantly evolving. I remember हमारे टाइम पे जो CS वाले बच्चे होते थे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाया जा रहा होता था, and they were also not sure कि what it would turn out. Yes, there were machine learning concepts at that time, but now that artificial intelligence has become a household home. So in this span of time मतलब ये change आ गया है. So इस पूरे टाइम में आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ लेबलिंग के यूथ पहले जो थी वो ज़्यादा बेटर डायरेक्शन में थी, अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई है या अब ज़्यादा डायरेक्शन में, आई कांट रियली से बिकॉज जो मेरा इंटरेक्शन रहा है कि द यूथ, जो यूथ के पास सबसे बड़ा एसेट है वो है एनर्जी का, कि यू हैव द एनर्जी, यू हैव द मोटिवेशन टू यू नो डू समथिंग. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी न्यूट्रल फॉर ऑल्सो कि आप यू जस्ट एग्जिस्टिंग, यू नॉट, आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे, आप किसी को फ़ायदा नहीं दे रहे और आप सिर्फ जी रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जेली फिश टाइप. तो जो हम कह सकते हैं आई थिंक वो ये है कि उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें वैल्यू एडिशन के लिए. ये वेर एवर आई गेट टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, विथ यूथ, आई ऑलवेज टेल देम, क्योंकि ये हमें भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने करना है, सब ने करना है. जैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग हमें कहते थे कि हमने कर लिया अब तुम लोगों ने आके लेके जाना है. नो, हम सब ने करना है, हमने भी करना है और हमसे बड़ी उम्र वाले लोगों ने भी करना है और यूथ ने भी करना है. ट्राई टू ऐड वैल्यू इन वॉट एवर कैपेसिटी यू आर देयर. लाइक इट कैन बी कि कल को मैं अपना कचरा जो है वो रोड पे नहीं फेंकता, कि मैं जो है अपनी दुकान में झाड़ू लगा के वो कचरा नीचे नहीं फेंकता कि जमानदार जब आएगा ले जाएगा. नो, इट कैन बी कि मैंने एक छोटा सा डस्टबिन अपने ही दुकान में, अपने ही घर में, अपनी ही गली में या अपने ही कमरे में रख दिया कि मैं कचरा कलेक्ट करूँगा. हो सके कल को मैं सीखूँगा कि मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, और अगर मुझे मौका मिल गया तो शायद कुछ रिसाइकिल कर लूँ, कुछ और कर लूँ. सो ट्राई टू ऐड वैल्यू. आई थिंक जो हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, a lot of new things we are able to see only because of the youth. There's a lot of content, good content online, and that is because of the youth, because they are constantly अपने device पे वो try to create, they are trying to create new things, और वो जो है information gap bridge कर रहे हैं. So I won't say it's distracted, I would say it's more energetic as ever. But try to, you know, add value in whatever capacity you can. ज़रूरी नहीं है कि आप तहिया कर लें कि मैं मुल्क बदल लूँगा. Maybe you can, there's no harm in thinking about that. But जिस भी capacity में अभी आप खड़े हैं ना, तो उसमें value add करने की कोशिश करें in whichever age you are or whichever age you would be. क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, आप उसको घंटा दे दें, आप उसको आधा घंटा दे दें, कोई नई चीज़ सिखा दें, कोई अच्छी बात कर लें. अगर वो किसी ऐसी सोच में फंसा हुआ है कि ना वो ज़रा उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो हंस के 2 मिनट बात कर लें. दैट इज़ ऑल्सो वैल्यू क्रिएशन.
वैल्यू ऐड करें, उससे ये होगा कि हर बंदा जब थोड़ा थोड़ा करता रहेगा तो कलेक्टिवली फिर वो यूथ नजर आएगी. एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इट इज़ बीइंग डन. आई वर्कड इन रूरल एरियाज ऑल्सो. I never got a chance to live there as a person, but because of my work, I got to go to rural areas, and I know कि वहाँ पे जो youth है, वहाँ पे जो energy है, it's amazing. We just और हम लोग का उस वक्त ये रोल होता था कि हम उनको जितना बेहतर direct कर सकें, redirect कर सकें, उतना हमारे लिए, उनके लिए तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, बिकॉज हमने भी तो सोसाइटी को गिव बैक करना है, हमने भी तो वैल्यू एडिशन करनी है. सो विच एवर रोल यू आर इन, भले आप स्टूडेंट काउंसिल, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट काउंसिल के, मैं ब्लू कोट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, स्टूडेंट काउंसिल में ब्लू कोट वाले अगर बोल दें कि यार मैं तो काउंसिल का हिस्सा बन गया, व्हाट इफ़ कोई ऐसा था जो इलेक्शन में कम मार्जिन से रह गया या ज़्यादा मार्जिन से रह गया, इसको मैं सिखा देता हूँ अपने साथ साथ कि यार काउंसिल में ये बात हो रही है, तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, उसको साथ कर लें, थोड़ा उससे पूछ लें, ताकि उनकी भी साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे. अगर हम सारे थोड़ा थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन करते रहेंगे तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन का वर्ड यूज़ नहीं करेगा, फिर सारे दे वुड थिंक एंड दे वुड नो दैट द यूथ हियर इन पाकिस्तान इज़ देयर टू अपलिफ्ट, इज़ देयर टू ग्रो एंड इज़ देयर टू एड वैल्यू टू द कंट्री ऑफ व्हाट विल बिकम. Acha, adding to this point, this question was indirectly connected to the artificial intelligence. By this I mean that I specifically as a youth, our visions lies in the chat GPT. Our goals are in the Gemini, and our communication is with the Snapchat AI. So that rebounds the thinking and the vision of the youth. That's why I asked this question. So what particularly I would just like to add that don't think of ChatGPT as your enemy. Obviously, I can't say it with full certainty because we don't know the full bounds of it. But whenever there is a new technology, एक general hesitation होती है. In term सबकी होती है. If you look at the applications also, जैसे हम लोग fellowship और इनकी applications कर रहे होते हैं, तो they also say कि यार excessive use of AI softwares would be discouraged, blah blah blah. But whatever it is, don't look at it as an enemy. I think that's the first step that you can begin with. Try to understand it. When you find something as an enemy when you don't understand it. वही बंदा बुरा लग रहा होता है जो आपको समझ नहीं आ रहा होता, या वही चीज़ बुरी लग रही होती है जो समझ नहीं आ रही होती. तो इसको समझने की कोशिश करें. Try to go with an open mind कि आप इसको समझें ये है क्या. And try to, again I would, बहुत ज़्यादा ईजीली मैं यूज़ कर रही हूँ कि अपने बेनिफिट में इस तरह यूज़ करें कि आप उस पर बहुत कंप्लेसेंट भी ना हो जाएं, और साथ साथ इट एड्स वैल्यू टू योर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ और वट एवर. बट अगेन इट्स ऑल रिलेटिव एंड इट्स ऑल समथिंग दैट वी नीड टू वर्क विथ एन ओपन माइंड विथ. मतलब हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. वी नीड टू हैव एन ओपन माइंड टुवर्ड्स AI and towards ChatGPTs or whatever, because the technology is there, it's a household name, it's going to support you or not in whatever. जब TV नया आया था तब भी जो लोग जिन्होंने कभी TV नहीं देखा था उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करना है. वो उसको देख के भी कि भाई ये तो इडियट बॉक्स भी कहते थे उसको, कि इसको फेंको, इसको ये करो. एंड जिनको उससे नुकसान फील हो रहा होगा वो फिर उसको बुरी तरह से भी परसीव करते होंगे. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, इट्स न्यू, इट विल इवॉल्व, and in whatever capacity use it to your favor, but not excessively, like complacent ना हो जाए. Don't let it affect your creativity. I think it's an amazing, lastly it's an amazing tool in a way. For example, I challenge myself with AI कि whatever, for example पहले मैं अगर एक पेज लिखती थी, अब मुझे AI वो लिख के देता है, तो now I would want to inculcate in me कि मैं इसको बेहतर कैसे लिख सकती हूँ. How can I write it in a much better way, in a shorter way, in a much precise way, so that it looks different from what AI has generated. So it's going to add to your creativity further. It is a good insight about AI. Yes, Mr. Sadullah, what are your thoughts about this? So I would like to just add with what Zara said. Today's youth, I think, is more capable, more informed, and more connected when we compare it with any generation before were connected to it. So of course it can be a cause of distraction too when you are connected. Now we have, मतलब मुझसे पहले से लोगों, मेरे फादर, मेरे या my teachers have the opportunities they had were not the same जो आज हमें अवेलेबल है या हमसे हमारे बाद के यूथ के पास हैं.
So opportunities is now just in our pockets, and so is TikTok. So I think the AI has equipped us with and made us capable of using the technology, and all we need to do is focus. I think attention is something which is being lacked. अगर focus आ जाएगा, so we will be able to use the technology in a way that that should have a long-term impact on the youth and on Pakistan. So ultimate goal should be long-term impact using these AI tools and these technologies, and all we need is focus to do that. Yeah, I guess that is something we, the youth, are lacking behind, and we have to focus on that. Yes, Mr. Khalik, what are your thoughts on this? अच्छा, my brother is also a Zebist alum ना. बड़े भाई मेरे 11-12 साल मुझसे बड़े हैं. 2009 में उन्होंने Zebist से MBA किया था. अच्छा, उनके पास ना एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती थी इतनी मोटी सी, तो वो कोई लफ्ज़ समझ नहीं आता तो बेचारा वो 400 पेजेस की डिक्शनरी खोल के एक लफ्ज़ निकालता उसमें से, फिर उसकी सिनोनिम्स, फिर ये फिर वो, फिर उसको डालना कैसे है. आई थिंक आजकल तो मतलब करना ही क्या है यूथ को. चैट जीपीटी है, आप लिख दें क्वेश्चन आ जाएगा. मैं भी यूज़ करता हूँ, सब करते होंगे. आई मीन कोई छुपी ढकी छुपी बात तो नहीं है, लेकिन बेफिक्र हो जाएं, ऐसे टूल्स भी आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के पास भी होंगे, वो एक डालेंगे, उसमें पता चल जाएगा कितना चैट जीपीटी से निकल आया है. आई थिंक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है आजकल यूथ के पास. आप एक रील्स कितना टाइम देखते होंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा, डस 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 डस, चेंज 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 चेंज. फोकस नहीं है ना. गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन, जो साद भाई ने बात की, मैडम ने बात की. टू मच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन्स गोइंग ऑन, टू मच इन्फॉर्मेशन. अ माइंड कैन प्रोसेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट. अगर आप उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा. इट कांट फोकस. इनसेंसिटिविटी बढ़ गई है इस माशरे में उस इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से. परसों जाफर एक्सप्रेस उतर गई, 25 लोग मर गए. ओहो मर गए, चलो खैर है. शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना. एफसी के गार्ड मर रहे हैं, बलूचिस्तान में इशूज़ हैं, केपी में लोग मर रहे हैं, पंजाब में इशूज़ हैं, सिंध में इशूज़ हैं. कितने आपको याद हैं? आपको इशू याद ही नहीं है. ये मसला है कि वो डिसेंसिटाइज बहुत हो गए हैं हम. यूथ जो है ना बहुत अभी उसका कसूर भी नहीं बेचारेगा. अब ज़ाहिर है अब को इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली मिलेगी. 200 के पैकेज में 10 दिन का इंटरनेट चलता है, वो क्यों नहीं चलाएगा यार. वो किधर जाए बेचारा. स्पोर्ट्स ग्राउंड तो है नहीं, क्रिकेट जाके खेले बाहर, तो फ़ोन ही चलाएगा. तो जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे उतना वो ग्रो करेगा. तो जब इंटरनेट उसको फैसिलिटेट करती है वो चलाता है. तो उससे लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड तो है, जैसे मैडम ने कहा, कंटेंट वैसा क्रिएट होता है, ई कॉमर्स बढ़ गया है. अभी आप आईबेक्स चले जाएं, वो इंटरमीडिएट का बच्चा, ए लेवल्स का बच्चा भी 70-80 हज़ार कमाता है कॉल सेंटर पे बैठ के. तो ऑब्वियसली फ़ायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है ना कि एज ए कम्युनिटी हम बड़े डिसेंसिटाइज हो गए हैं. सेल्फ अवेयरनेस कम हो गई है. बिकॉज आप इतना पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाते. ये मैंने एक चीज़ नोट की है. अभी एक थोड़ा सा मैं हट के टॉपिक से बात करूंगा. 2 महीने पहले एक कनाल कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी, पानी का इशू था बड़ा पाकिस्तान में. सिंध पंजाब बॉर्डर बंद था, 2-3 हफ्ते के लिए बंद था. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेशनलिस्ट अबाउट इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितने लोग अवेयर हैं मसलों से. मेरा एक दोस्त है हैदराबाद कराची का, हम ऐसे बैठे थे एक सर्कल में, एक ग्रुप में. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम लोगों का कोई तुम्हें फील नहीं हो रहा कि ये पानी बंद हो जाएगा, और मतलब कराची में, हैदराबाद में, सखर में, मीरपुर खास में हमारे जो सेंटर्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ ना मैं आपको, कि फोकस किस पे है किस पे नहीं. बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ टैंकर आता है. तो मैंने कहा टैंकर किधर से आता है? बोलता हाइड्रेंट से आता है. तो मैंने कहा हाइड्रेंट किधर से भरता है? तो चुप हो गया. कराची का 90% पानी इंडस रिवर से आता है. तो द पॉइंट इज उनको पता ही नहीं है ना. अब उनको क्या मतलब वो क्या बेचारे सेल्फ अवेयर होंगे जब उनका फोकस डिफरेंट चीज़ों पे है. ये तो होगी नेगेटिव बातें कि भाई आजकल का यूथ थोड़ा अटेंशन स्पैन कम है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. पॉजिटिव बात ये है कि यार ड्रिवन बहुत है, कॉम्पिटिटिव बहुत है. हमारे दौर में होते थे ना, हमारे फादर्स, मदर्स, ग्रैंडफादर्स, चचे मामे, वो बोलते थे यार खैर है, गो विद द फ्लो टाइप, बहती हवा सा था वो वाली बात है ना. हाँ यार देख लेंगे, कर लाएंगे, हो जाएगा. आजकल का यूथ बोलेगा नहीं मैं 16-17 साल का हूँ, मुझे तो कमाना है, मैं आईबेक्स ज्वाइन करूँगा, मैं ई कॉमर्स करूँगा, मैं फ्रीलांस फाइवर करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा. तो ड्रिवन बहुत है, ही इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव.
आप थोड़ा 2 मार्क्स आगे निकल जाएं किसी के, आप भी एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते होंगे, दोस्तें आ गई भाड़ में, क्यों 2 मार्क्स कम है मेरे मैडम, ज़्यादा दें। कॉम्पिटिटिव बहुत है, अचीवर ना, हाई अचीवनेस बहुत आ गई है, तो आई थिंक वो प्लस पॉइंट है। और ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ब्रीड्स प्रोग्रेस। ऐसा तो नहीं है कि भाई कॉम्पिटिटिव होना बुरी बात है, अच्छी बात है, थोड़ा केओस होगा, थोड़े झगड़े होंगे, उससे तो प्रोग्रेस आती है ना। तो हाँ, हार्ड टाइम्स, बट वही है कि हार्ड टाइम्स फिर जो है आपको एक बेहतर इंडिविजुअल बनाते हैं। तो नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रेगुलेट योर टाइम आई गेस। If you give away to this information, if you give away to all these fake news, or if you give away to all these fake ideologies, तो आई थिंक अगर आप ना करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर इजीली अगर आप उस पर गिव अप कर देंगे और आप बोलेंगे हाँ भाई यही सच है, आज क्या क्या वो चैट जीपीटी आप मतलब करता है इमेजेस, आप बोलेंगे यार ये तो मतलब इसने ये भी कर दिया, अबे भाई वो तो सोया हुआ था, वो था ही नहीं उस टाइम पे, लेकिन उसने क्रिएट कर दी इमेज, आपने मान भी लिया। तो आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू रेगुलेट इट। बाकी यूथ ही यूथ है भैया, है ही यूथ, अब मतलब 12-13 करोड़ यूथ हैं, बाकी तो सब मर खप जाएंगे। तो ऑब्वियसली उनको ग्रूम करना है, उन्हीं पे फोकस करना है। और ऐसे अदारे जो हैं, ज़ेबिस्ट है, प्रीडोमिनेटली मेरा अपना आल्मा माटर है, तो मैं उसी की तारीफ़ करता हूँ। और IBA ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो ऑब्वियसली ऐसे अदारे होंगे तो आई गेस बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा। That is what it is. Thank you. Thank you so much. I guess we had an ample amount of insight about youth empowerment, youth leadership. So now I'll just move towards a concluding remarks from all three of you, and a little suggestion you have for the students here, for the council members here, and then we'll conclude this panel discussion. First of all, I think I would like to thank Zabist for having me. I think it's a matter of huge honor and privilege that you're invited. And again, being invited also is a matter of responsibility, because you need to add value. Like I said, that you must add some value. If you've spoken 100 words, at least 3, 4, 5, 6, 10 should be of value, so that everybody here or most people here take something valuable forward. तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा thank you to everybody who invited me and give me this platform. Concluding remarks, I think it's ये Independence Week है, बहुत अच्छा, हम सारे green भी पहने हैं उन्हें सब ने। So जो है Independence Week है, Independence Week normally every year is a reminder of why the country is, why it became independent, or why we are here on this land calling it our own. We don't need a visa to come here. This is the one country at least that would let us enter, hopefully without any problems. So but then I think Independence Week is also a reminder of what our role in the country is, and that role can be in whatever capacity. I think I would not limit our existence to professional bounds or कोई और bound से कि भाई मेरा role क्या है as a student or as a citizen, just like what is your role, what is your duty to the country. Just be aware of that, keep exploring that. It's never a one एक दफ़ा बस समझ के रुक नहीं जाना. Try to keep evolving, keep exploring why things are the way they are, why things are not the way they are, and what you can do in making it better or making it easy. Or जो है in your own personality, in people around you, try to keep a thinking mind कि जो है किस तरह और बेहतर हो सकता है, किस तरह और जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसको कभी कभी ट्रेडिशनल चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, उसको ना हटाना भी ज़्यादा बेहतर होता है. सो ट्राई टू नॉट हैव लिमिटेशंस ऑन द माइंड कि नहीं ये तो पुराना है, ये तो घिसा पिटा है, ये तो ख़राब ही होगा. ज़रूरी नहीं है, उसकी अपनी भी कोई ब्यूटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी, जैसे खालिक साहब ने भी बात की कि community, to have a community is a very strong blessing that we are not, हम slightly we are not realizing कि ये कितना ज़रूरी था. पहले sense of community बड़ा ज़्यादा होता था. हमारे क्लास को कुछ अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम लोग बड़ा फील करते थे उसको. आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कम होती जा रही है. So trying to
फाइंडिंग आउट कि कोई चीज़ अगर है तो वो क्यों है इज़ ऑल्सो अ वैल्यू. बाकी आई थिंक अ लॉट इज सेड एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर सेड. ट्राई टू अनपैक. जब आप घर जाएं या कल को बैठें अभी इस डिस्कशन के बाद, तो ट्राई टू थिंक कि क्या बोला गया है या क्या डिस्कशन हुई है, उसको ज़रा अनपैक करें, प्रोसेस करें. अगेन इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, नो टाइम टू प्रोसेस. सो ट्राई टू प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन. थिंक कि आपको क्या अच्छा लगा और बाकियों से डिस्कस करें, सो दैट वॉट एवर इज़ डिस्कस्ड हियर कुछ आप अपने साथ ले जाएं. क्योंकि मैं अपने तजर्बे से भी बताऊंगी कि समटाइम्स वी डू सिट इन डिस्कशंस बट देन बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू प्रोसेस व्हाट इज़ सेड, वी डू फॉरगेट कि क्या हुआ था. हाँ भाई 3 लोग कोई आए थे, कुछ बोल के चले गए, बट इफ़ यू प्रोसेस इट देन यू विल रिमेंबर समथिंग कि हाँ भाई वो साहब ने कुछ अच्छा बोला था या कुछ ऐसा बोला था या अच्छा नहीं बोला था, वो भी हो सकता है. सो ट्राई टू प्रोसेस वट एवर इज़ स्पोकन हियर. Do well in the university in terms of your holistic development. I think that's a basic thing to say, but yeah, well, like best of luck. Zabis, I have a very fond memory and a very fond attachment of. जो है it's a very good breeding space for a lot of thinkers, for a lot of doers. So don't worry that you're in the right place and you will inshallah do very good in future. So thank you. Thank you so much, Ms. Zara. Now, please, Mr. Sadullah. First of all, thank you, Zabas, and thank you, SSC, for inviting me to this panel discussion from independence to interdependence. And in my concluding remarks, I would like to say that independence to interdependence is the essential thing, I think, which we all should do to make Pakistan safer and stronger. And I think collaborations can be our national strength, because now me being in the advisory role at IT department, Government of Sindh, we mostly focus on public-private partnerships and when it comes to energy and IT infrastructure projects. So of course it's all about collaboration, and people like me and people like them are, the government is giving us platform to be on the same page. So collaborations are a gateway, because people at the top always collaborate. I think it's essential to collaborate. And when it comes to youth and to the students, I would like to say that its focus is something which is very important in this fast-paced AI and 5G world. And focus on bringing a good impact to the society, and contributing towards the betterment of it is something one can have, so that we all can make Pakistan safer and stronger. Thank you so much. अच्छा, मैं तो सबसे पहले थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन. मैडम नादिया ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया. थैंक यू टू मैडम नादिया, सर इमरान, जो भी हमारी फैकल्टी है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. मैं ना अभी गेट से आ रहा था तो गार्ड्स ने ना मुझे रिकग्नाइज़ किया कि ये वही है, मतलब 4-5 साल पुराना वाला ये. तो एक ने बड़ा ज़ोर से ना मुझे झप्पी की, अरे सर आप वैसे तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, आज हमें लेफ़्ट पे पार्किंग मिल गई. मैडम की सरकारी गाड़ी के साथ हमने अपनी प्राइवेट गाड़ी भी रोकी. सर आप आज हमारे 2 पहले गए, वो भी हमारे बच्चे, आप सर क्या बात. ये इज़्ज़त इस अदारे ने दी है ना हमें. अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या करें. आपके जो उस्ताद हैं ना, आजकल के बच्चे थोड़े वोक हैं, राइट्स हैं ना उनके. टीचर ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, हाउ डेयर यू. हम तो डंडे खा के आए यार. ये तो फिर भी कराची में फिर भी कुछ इज़्ज़त से होती है स्टूडेंट्स की ट्रीटमेंट. तो अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, मेरी उनको सजेशन ये है. ये जो दीज बंच ऑफ पीपल, ये आपको नहीं मिलेंगे फिर. मुक्तदा साहब जब आते थे ना, थोड़ा इमोशनल सब टॉपिक है मेरे लिए. आई यूज्ड टू टच हिज फीट व्हेन यू एंटर द क्लास. तो बच्चे बोलते थे क्या कर रहे हैं. तो मैं कहा यार नहीं, हम थोड़ा सिंधियों का ये कल्चर है ना, थोड़ा उस्तादों के पाँव पड़ते हैं थोड़ा. तो फिर क्लास के बीच में सर यूज्ड टू से, यार वो मैं बना चाय, तो मैं सर के लिए चाय भाग भाग के ले आया था. तो बच्चे बोलते थे जो थोड़े अर्बनाइट्स वोक, इसको मार्क्स चाहिए एक्स्ट्रा. मिलते नहीं थे यार, वही 70s 80s में देते थे. तो आपका अदारा ना आपको इज्जत देता है, मेमोरीज देता है. तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, ये हैं ना हो, हम जो हैं इनकी वजह से.
ये सब जो बैठा है, जो ग्रुप पढ़ा, और एट द एंड ऑफ द डे मायूसी कुफर है, नेवर लूज होप। आप सबकी एक जर्नी है, आप सबको पैसे भी कमाने हैं, शोहरत भी चाहिए, इज़्ज़त भी चाहिए, हर चीज़ टाइम से आ जाती है। टाइम इज़ योर एलाय इफ़ नो वन एल्स, इट पासेस, इट्स ट्रांजिएंट। कभी आपका एलाय है, कभी आपका दुश्मन है, बट अल्टीमेटली आपका एलाय है। तो टाइम से सब चीज़ें मिल जाती हैं। बी फोकस्ड, जैसे साद भाई ने कहा, जैसे मैडम ने कहा, और हमारा कोई इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन माई 2 cents was just to बी काम, let time process yourself। आप वक्त ही आपको सिखाता है चीज़ें, अल्टीमेटली आप सबको वो चीज़ें मिलेंगी अगर आपने कुछ फंडामेंटल्स पे फोकस किया। स्टडी को भी टाइम दें, फ़न भी करें, उस्तादों की इज़्ज़त करें, माँ बाप से दुआएं लें। इट्स अ प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट विल टेक यू वेरी फार। और अल्टीमेटली थैंक यू टू एवरीवन। उम्मीद, कुछ मैंने ऐसी बातें कह दी, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैंने अभी कैमराएं देखी हैं, तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम इमरान साहब मुझे मैसेज ना करें, मैडम बोलें यार इसको ना दाढ़ी मूछ वाले को नहीं बोला ना। तो या एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। यू आर द प्रेसिडेंट, आपके पास है। थैंक यू। Thank you so much. I guess this was much needed, discussion that we had. And thank you to the panelists. Sure. My LinkedIn, you can add me on LinkedIn if you want to connect or have any questions. So LinkedIn details, Sure, I think sure. if you search Zara Zahid, aa jayega Zabis ko pick karke. So yeah. Sure. We'll share your LinkedIn. Yeah. We'll share it. And thank you so much for taking out time and coming here for the Zabis. And thank you so much to Ms. Nadia for connecting us to the alumni and everyone who made this panel discussion possible. And we hope to have more further collaborations and these sort of discussions so that the youth can have an insight what actually they need to do and they should have the path for. Thank you so much. And I guess we are now concluding the panel discussion. Can we have the emoji here, please? I would request the panelists to please stay here. We have the token of appreciation and souvenirs for you. Thank you to our panel for their insightful discussion. I would request all the panelists to stay on the stage to present them the appreciation on behalf of the Zabas Student Council. I would like to call Dr. Hareem Siddiqui and Ms. Wajiha Javed, the head of Student Support Services, for their token of appreciation. Please welcome them with a big round of applause. I would like to call Sir Fahad Zubairi, our program manager of BBA. Please come on stage. Welcome him with a big round of applause. We also welcome Ms. Nadia. This token of appreciation for Ms. Zara Zahid. Now we have the second token of appreciation for Mr. Abdul Khalik Maiman. Now we have third token of appreciation for Mr. Saadullah Sheikh. Now I would like to call the SSC members for a group picture. All the student council members, please come on stage.
We shall truly and consciously strive to uphold the good name of Zabas at all times. We shall strive for excellence through perseverance and commitment. We shall work together free of prejudice and intolerance. We shall to the best of our abilities do justice to the responsibilities entrusted to us by the students of Zabas for the students of Zabas. God bless you. Many congratulations.